Hello friends, welcome to my channel Profit Learning. Today we are releasing the 10th video of the stock valuation under Fundamental Analysis course. In this video we will discuss about the free cash flows, the net cash flows and its component, that is the cash flows from operations, the cash flows from financing activities, the cash flows from investing activities. Then we will discuss about the price to cash flows. Then finally we will discuss about the cash conversion cycle. I will also tell you about how to use these financial parameters in stock valuation. And let me remind you, these video series are in the continuation. If at all you have not watched my previous 9 videos, I will provide you the link in description. You can watch it from there. I also advise you to please watch this video till the end because I am going to give you the important tricks how to use these financial parameters in stock valuations with the help of live examples. So let's start. So these are the content. We will discuss these parameters one by one. So first of all, we will discuss about the net cash flows. So what is net cash flows? Net cash flows is nothing but it's a summation from the cash flows from operation, cash flow from investing and cash flows from the financing activities. So the net cash flows क्या बताता है आपको कि कंपनी के पास कौन सा पैसा अंदर आ रहा है, कौन सा पैसा बाहर जाता है, वो नेट कैश फ्लोज स्टेटमेंट से आपको पता चल जाता है. So that is the net cash flows. Now we will discuss these sections separately. So first is cash flows from operation activities. It is very clear from the statement itself, that is the cash which is generated from the core operation, that is the cash flows from operation. So how we will calculate it? Net income plus non-cash expense plus change in working capital, that will give you the cash flows from operations. So cash flow operations किस चीज को मेजर करता है? Your core competency, आपका जो भी काम होगा कंपनी का, अगर उस नॉर्मल बिजनेस से वो जो कैश जनरेट हो रहा है, that will give you the cash flows from operations. And the cash flows from operation is very important because it directly depicts the financial health of the company. अगर कैश फ्लोस प्रॉपर्ली जनरेट नहीं हो रहा है तो कंपनी को वहां पर लोन लेना पड़ता है या किसी से फाइनेंसिंग करवानी पड़ती है. फर्दर बहुत सारे फाइनेंशियल एनालिस्ट कैश फ्लोस फ्रॉम ऑपरेशंस ज्यादा प्रीफर करते हैं देखना एज कम्पेयर टू योर प्रॉफिट. एंड व्हाई इट इज लाइक दैट? सपोज एक कंपनी का प्रोडक्ट आपने बेचा है और बेचने के बाद आपने एक्सपेक्ट किया है कि वो पार्टी आपको पेमेंट करेगा, लेकिन पेमेंट करते करते उसने बहुत टाइम लगा दिया और रियल में वो कैश आपके पास आया नहीं. तो आपने बैलेंस शीट में आपने शो कर दिया है कि दैट इज द प्रॉफिट दैट यू गेट, बट इन अ रियल सेंस द कैश ट्रांजैक्शंस हैजंट टेक प्लेस. So many of the times these issues will come because if at all you have given a product to a big party and they are not giving a cash to the company, that's very difficult to manage your operation. And if a company is not generating enough cash from the core operations, it's very difficult for the company to stand in a competitive market. So the good cash flows from the core operations builds the foundation of any company. The cash abilities allow a business to expand, launch a new product, buy back the shares, pay out the dividends to the shareholders. Further, there are the two methods to depict the cash flows from the operation. First one is direct method, second one is the indirect method. So direct methods tracks all the transactions in a period of cash basis, use actual cash inflows and outflows of the cash flow statements. That is very difficult. Likewise, salaries paid out to the employees, cash paid out to the vendors and suppliers, cash collected to the customers, interest income and pay and dividends, income tax paid, interest paid, etc. etc. So it's very difficult to track each and every transaction if at all the company is very big. So indirect method is somewhat very easier, that is operating cash flows. How you will calculate that? Your net income plus your non-cash expenses minus increase in working capital, that will give you the operating cash flows. Next is cash flows from the investing activity. Here we have used the word investing. So investing is always done for the long term. So here the cash flows from the investing activities involves a long term use of the cash. अब long term use of the cash में क्या क्या परचेस कर सकते हैं? That is your fixed asset, property, plant, equipments. जो investing, ये सब सारी चीजें जो होती हैं वो investing activities के अंदर आती है. इन ए कैश फ्लो स्टेटमेंट जब आप इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी कर रहे हैं तो कैश आपके कंपनी से बाहर जा रहा है तो वी विल इंडिकेट एज ए नेगेटिव पॉइंट. सो ये नेगेटिव से हम लोग इंडिकेट करते हैं इन ए कैश फ्लो स्टेटमेंट. सो दैट इज ऑल अबाउट द कैश फ्लोज फ्रॉम द इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज. Next is cash flows from the financing activity. As the name indicates, it's financing means you are funding the company. So funding in terms of what? That involves your debt, equity and dividends. So the cash flows from the financing activity scatters your day-to-day operations, and that whatever your interest payments, your equity payments, your dividends payouts, it involves all under the financing activities. Now comes the favorite part of every investor, that is free cash flows. Free cash flows is nothing but it is an operating cash flows minus your capital expenditure minus your working capital.
मीन्स ऑपरेटिंग कैश फ्लो से आपका जितना भी कैश जनरेट हो रहा है उससे हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस कर रहे हैं, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर आप जो खर्च कर रहे हो कंपनी को फॉर द एक्सपेंशन और एनीथिंग, माइनस योर वर्किंग कैपिटल, जो डे टू डे ऑपरेशन के लिए आप वर्किंग कैपिटल लगा रहे हो उसको भी माइनस कर दीजिए, वो आपका जनरेट होता है फ्री कैश फ्लोज। फ्री कैश फ्लोज एज ए लेमन अगर हम समझें कि फ्री कैश फ्लोज को अगर आप जला भी देते हैं तब भी वो अपने डे टू डे ऑपरेशंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो वो होता है आपका फ्री कैश फ्लोज। सो जनरली स्पीकिंग फ्री कैश फ्लोज आपका पॉजिटिव होना चाहिए और ग्रोइंग होना चाहिए। समटाइम्स आप फ्री कैश फ्लोज आपका नेगेटिव भी हो सकता है, अगर किसी कंपनी का कोई हैवी कैपेक्स किया है तो उस साल के लिए वो कंपनी का जो फ्री कैश फ्लोज होगा वो नेगेटिव हो सकता है। बट थ्रू आउट आप डिकेट्स चेक करेंगे तो अगर आपका एक दो में हिकअप्स आया है और वो ड्यू टू ओनली कैपेक्स एक्टिविटीज, दैट इज ओके विद दैट कंपनी, आप उसको कंसिडर कर सकते हैं। बट ऑलवेज स्ट्राइव to look for the company that is a free cash flow should be positive and it is should be growing. Moreover, बहुत सारी कंपनीज ऐसी होती हैं जो फ्री कैश फ्लोज आपकी चेक करने के बाद आपको कुछ फाइनेंसिंग मिल सकती है, फंडिंग मिल सकती है, चाहे बहुत सारे जो इन्वेस्टर्स हैं वो आपकी कंपनी की तरफ अट्रैक्ट होते हैं जब आप कोई फ्री कैश फ्लोज आप अच्छी तरह से जनरेट कर रहे हैं। A good free cash flows helps the company to build a good reserves, which helps the company to acquire some of the good business in future or venture into the other streams or do the forward integration or anything that helps the company to build a global giant. Next is cash conversion cycle. So cash conversion cycle is nothing but कि आपका प्रोडक्ट आपका कैश में कितना दिन में कन्वर्ट हो रहा है, that indicates the cash conversion cycle. So here itself you can see that it's an operating cycle. Operating cycle में inventory days यहाँ पे इतना हो रहा है, इसके receivable days इतने हैं और पेएबल डेज इतने हैं, तो कैश कन्वर्जन साइकिल्स कितना हो गया, ये पार्ट आपका कैश कन्वर्जन साइकिल हो गया। हाउ डू यू कैलकुलेट दैट? दैट इज डेज इन्वेंट्री आउटस्टैंडिंग प्लस डेज सेल्स आउटस्टैंडिंग प्लस माइनस डेज पेएबल आउटस्टैंडिंग, दैट विल गिव यू द कैश कन्वर्जन साइकिल। इट्स सो कैश कन्वर्जन साइकिल जितना कम होगा वो कंपनी उतनी अच्छी मानी जाएगी, क्योंकि कैश कन्वर्जन साइकिल आपको ये इंडिकेट कर रहा है कि कितना टाइम लग रहा है आपका प्रोडक्ट कैश में कन्वर्ट होने में। सो नेचुरली आपका कैश कन्वर्जन साइकिल जितना कम होगा वो कंपनी उतनी अच्छी होगी। मेनी ऑफ द टाइम वी हैव सीन दैट द कैश कन्वर्जन साइकिल इज नेगेटिव। दैट मीन्स व्हाट, कि आपको कस्टमर आपको पैसा दे रहा है इन ऑर्डर टू गेट द प्रोडक्ट, तो यहाँ पर कैश कन्वर्जन साइकिल आपका नेगेटिव है। बहुत सारी कंपनी में ऐसा देखा गया है एंड दैट इज वेरी गुड टू हैव। और बहुत सारी कंपनी में ऐसा देखा गया कि कैश कन्वर्जन साइकिल इज मोर देन ए ईयर, मीन्स यू हैव सोल्ड द प्रोडक्ट टुडे एंड you will get the cash after 1 year or so. So it's not a good thing for the company. So cash conversion cycle typically आप देखोगे FMCG सेक्टर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है, क्योंकि आपका इन्वेंट्री बहुत ज़्यादा वहाँ पे मैटर करता है कि आपका इन्वेंट्री कितना बार चर्न हो रहा है, चेंज हो रहा है. सो उनकी जो डिमांड सप्लाईज है और जो उनको अपनी इन्वेंट्री रखनी है वो किस टाइप से रखनी है, कितना डिमांड है, तो सारी चीज़ें बहुत सारी फैक्टर इन करती है बाय सीइंग द कैश कन्वर्जन साइकिल. सो दैट इज ऑल फॉर द कैश कन्वर्जन साइकिल. Next is price to cash flow ratio. So price to cash flow ratio is nothing but it's a share price upon cash flows per share. यहाँ पर जो cash flows से हम लोग यहाँ पर जो ले रहे हैं that is operating cash flows. अगर आप indicate कर पा रहे हैं तो price to cash flows ratio is very similar to your price to earning per share and earning per share is very similar to your cash flows per share. So difference कहाँ आ रहा है? मैंने आपको पहले बताया था कि एक पर्टिकुलर अगर कोई कमोडिटी या प्रोडक्ट आपने किसी कस्टमर को बेचा है और आपने प्रॉफिट बुक कर लिया, हो सकता है वो आपको कैश नहीं लौटाया है, मतलब कैश आपको दिया ही नहीं है. सो आपके कंपनीज के बुक्स में वो प्रॉफिट दिखेगा तो आपको अर्निंग एलिवेटेड दिखेगा, लेकिन रियली में वो कैश आपके पास पहुंचा नहीं. सो इन कंपैरिजन सेंस में अगर हम बात करते हैं तो कैश फ्लोज पर शेयर इज बेटर इंडिकेटर एज कंपेयर टू योर अर्निंग पर शेयर and the price to cash flow ratio is better indicator than your price to earning per share. In a similar fashion to price to earning per share, that is P by E ratio अगर जितना कम होगा वो स्टॉक को हम लोग लो अंडर वैल्यू बोलेंगे, लो वैल्यूएशंस बोलेंगे. अगर P by E रेशियो काफी ज्यादा है तो वो स्टॉक ओवर वैल्यूड होता है. सिमिलरली प्राइस टू कैश फ्लोज रेशियोज अगर ज्यादा है तो वो भी ओवर वैल्यूड होगा. Now we will take some of the live examples and we will see that how to check these financial ratios while doing the stock valuations. So over to the screen. Here we have used the screeners.in. The first example is ITC Limited. ITC Limited में आप देखेंगे कि कैश साइकिल यहाँ पर 162 दिखा रहा है. सेकेंड एग्जाम्पल में अगर हम लोग चेक करते हैं मैरिको को, तो मैरिको का जो कैश कन्वर्जन साइकिल इज 122.
जैसा मैंने आपको बताया था कि कैश कन्वर्जन साइकिल जितना कम होगा वो कंपनी को हम उतना अच्छा कंसिडर करेंगे. सो मैरिको इन टर्म्स ऑफ कैश कन्वर्जन साइकिल इज फाउंड बेटर देन द ITC. नेक्स्ट इज हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड. आप यहाँ पे देख रहे हैं कैश कन्वर्जन साइकिल नेगेटिव है. सो लिटरली यहाँ पर जो आपको कस्टमर हैं, जो सप्लायर हैं, जो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर है, वो आपको मनी पे कर रहे हैं, मीन्स कंपनी को फंडिंग कर रहे हैं इन ऑर्डर टू गेट द प्रोडक्ट. सो दैट इज द केस, दैट इज द पावर ऑफ द हिंदुस्तान लीवर कि उनका चैनल मार्केटिंग इतना ज्यादा है, इनके डिस्ट्रीब्यूटर्स काफी ज्यादा है. सो यहाँ पर आप कैश कन्वर्जन साइकिल देखिए नेगेटिव है यहाँ पर, और जो एक FMCG सेक्टर के लिए बहुत ज्यादा रिमार्केबल है. नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं कॉक्स एंड किंग्स लिमिटेड का. यहाँ पर क्या है कि आप जब कैश फ्लोज स्टेटमेंट में जब जाएंगे, कैश फ्लोज स्टेटमेंट में देखिए कैश फ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टिंग जो ऑपरेशन एक्टिविटी है वो नेगेटिव है. मीन्स आप लास्ट 3 इयर्स में देखिए कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेशन आ ही नहीं रहा है, नेगेटिव है. लेकिन आप प्रॉफिट अगर आप चेक करेंगे यहाँ इसका लास्ट 3 इयर्स का जब देखेंगे, यहाँ पर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स योर नेट प्रॉफिट यहाँ पे देखिए पॉजिटिव आ रहा है. सो कंपनी तो प्रॉफिट यहाँ पर बुक की थी कि यहाँ पर प्रॉफिट है, लेकिन यहाँ पर रियल सेंस में कोई कैश आया ही नहीं. यहाँ पर रियल सेंस में आपके पास कैश ही नहीं है. सो दैट इज द केस. ये आपको देखना है कि मतलब अगर कोई कंपनी प्रॉफिट बुक कर रही है तो रियल सेंस में कैश फ्लोस फ्रॉम ऑपरेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसके फ्री कैश फ्लोस कितने हैं, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज कितनी हुई हैं, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज नहीं है. एंड बेस्ड ऑन दैट आपको ये देखना है कि ये कंपनी फ्रॉम ऑपरेशन प्रॉपर कैश फ्लोस जनरेट कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है. नेक्स्ट हम लोग एग्जांपल लेते हैं भारतीय एयरटेल का. भारतीय एयरटेल में आपको पता है कि यहाँ पर कैश फ्लोस फ्रॉम ऑपरेशंस काफी ज्यादा होगा, क्योंकि ये कैश फ्लोस फ्रॉम द ऑपरेशन होता है, लेकिन ये दे आर नॉट एबल टू मींस टेक आउट द प्रॉफिट. व्हाई इट इज दैट? देखिए आप कैश फ्लोस फ्रॉम ऑपरेशन देखिए यहाँ पर 20,000 करोड़, 18,000 करोड़, 29,000 करोड़ इस टाइप के कैश फ्लोस फ्रॉम ऑपरेशन है. लेकिन अगर आप प्रॉफिट इसका चेक करेंगे, दैट इज प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट इज नेगेटिव. Why it is like that? कि नेट प्रॉफिट क्यों नेगेटिव है? कि नेट प्रॉफिट इसलिए नेगेटिव है क्योंकि इन्होंने लोन्स काफी ले रखे हैं, इंटरेस्ट पेमेंट्स करने पड़ते हैं, उनके जो टावर्स के इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, उनके जो कॉर्पोरेट ऑफिस के इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर को उनको काफी ज्यादा मेंटेनेंस में खर्चा लगना पड़ता है. दैट मीन्स व्हाट, इनको ब्रेक इवन के लिए भी कैश फ्लोस जो ऑपरेशन जो अभी आ रहा है उनसे काफी ज्यादा करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू हैव अ ब्रेक इवन, देन उनकी प्रॉफिट्स जनरेट होना चालू होंगी. सो देयर इज अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव कि आपको कैसे अपनी कंपनी को एनालाइज करना है. दैट इज द स्मॉल एग्जांपल से मैंने आपको समझाने की कोशिश किया. दैट इज ऑल फॉर दिस वीडियो. If you like this video, please hit like button and do share this video with your friends and family so that they can also learn and gain the financial knowledge. And if at all you have not subscribed my channel yet, you can subscribe to my channel and don't forget to press a bell icon for latest financial videos. Please give your feedbacks in the comment box because it gives me immense motivation to bring such videos for you. You can also write your query, clarification or any suggestions. Thanks for watching. That's all from my side. Happy investing. Thanks for watching. You can subscribe to my channel Profit Learning for more updates regarding financial markets, and don't forget to press bell icon for latest financial videos. If you like this video, please hit like button and share this video with your friends and family. Do write in a comment section for feedback, clarification or any suggestion. Happy investing.